हाय एवरीवन, वेलकम टू रिफ्लेक्ट विद दीपाली। हम में से बहुत सारी औरतें हैं जो घर से कुछ करना चाहती हैं। आज हमारे साथ हैं रेखा राघवन, जिनसे हम जानेंगे हम घर से अपना खाने का काम, एक होम शेफ होना कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए मिलते हैं रेखा राघवन से। Hi, Dipali. हाय रेखा, हाउ आर यू? All well, thank you. How are you? वेरी गुड, थैंक यू रेखा। रेखा, आप पहले सबसे शुरू करने के लिए आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप एग्जैक्टली क्या करती हैं? आज के डेट में अब मैं बताऊं तो मैं काफ़ी कुछ करती हूं। मैं घर से खाना बनाती हूं एज अ होम शेफ़। मैं काफ़ी सारे होटल्स के साथ काम करती हूं। दूसरे होम शेफ्स को प्रमोट करती हूं। रीजनल फूड कंसल्टिंग करती हूं। जी, ओके। तो रेखा, आप एग्जैक्टली होम शेफ के काम में आप कैसे घुसी? तो इफ़ आई टेक यू बैक टू माई लाइफ, सो आई वॉज अ कॉर्पोरेट पर्सन. ओके, So I used to work with companies like GE, PwC, KPMG, but that was something I was doing just for my living because it was not something I wanted to do. Okay. Because cooking has always been my passion. ओके, I wanted to be a chef. Unfortunately, at the time when I was growing up in 90s, cooking was not a good profession for females as per my family. ओके, That was the mindset of people at that point in time. So I couldn't pursue my dream of doing a hotel management degree. Okay. But it was a dream. So cooking was my passion. So I used to cook different things for my friends and family. And my friends encouraged me to take this up as a profession. oh that's brilliant Rekha, it's your So blessing to have such friends then. yes. So one day there was some inquiry on one of the food groups that someone wanted to do a Kerala Sadhya. Okay, Sadhya is something that very few people do in northern part of India. okay. So I messaged this person. So Sadhya, what is Sadhya exactly? Sadhya is a meal which we serve to gods as per the Kerala traditions. And for all the auspicious occasion in the family, we make Sadhya. Be it a birth of a child, be it marriage, anything, that Sadhya is made. Okay, And during festivals like Onam and Vishu, again, it consists of around 25 dishes served course by course okay, on a banana leaf. okay. तो So- सद्या के लिए बेसिकली आपने कहीं इंक्वायरी देखी? हाँ, इंक्वायरी देखी और आई स्पोक टू दिस पर्सन. They wanted a small sadhya for around 40 people for their wedding. Oh wow. So I said I can do it because I've been making sadhya with my granny from very small age. So I gave him some sample. He liked it, and that's how my journey started. I was working at that point in time, but still I went ahead and did this catering. Side by side, just to start it. Yes, Okay, that's and brilliant. that sadhya was a hit. I got very good feedback, and then along with my work, I started doing weekend caterings, Wow, wow. home तो आपने caterings. अब अपना काम छोड़ दिया है then? अब you've taken this up professionally Yes. now. So after 6 months of starting that, I left my job and I became a full-time entrepreneur, I should say that. Wow, that's amazing. That's so nice to hear, रेखा। अच्छा रेखा, आप एक बात बताइए कि साउथ इंडियन फूड, आप केरला से हैं? हाँ जी. जी, तो साउथ इंडियन फूड जो हमारे को वहाँ पे मिलता है साउथ इंडिया में और जो दिल्ली में मिलता है उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल तो ऐसा, है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? साउथ इंडियन फूड बोलोगे तो अब डिफरेंट रीजन्स है. अब यहाँ पे मोस्टली जो सांबर मिलता है वो स्वीट होता है. अब इडली सांबर की बात कर ले अगर आप केरला या तमिलनाडु या आंध्रा में चले जाए तो दैट्स नॉट स्वीट. इट्स ओनली इन कर्नाटका दैट दे सर्व स्वीट सांबर. जी, सो सो बेसिकली यहाँ पे दिल्ली में पंजाबी टच आ जाता है। हाँ, पंजाबी टच, गरम मसाला आ जाता है तो इसलिए टेस्ट चेंज हो जाता है. ओके, ओके, ब्रिलियंट। अच्छा, आप एक बात बताइए अब रेखा, अब ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बेसिकली घर से ही कुछ काम करना चाहती हैं जी. और खाना बीइंग फीमेल्स घर पे खाना बनाती ही हैं, तो ये है कि ये करना बेसिकली हमारे लिए थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली, राइट? तो एग्जैक्टली अगर हमारे को होम शेफ बनना है या सेटअप करना है तो वो कैसे किया जाए? अब पहले तो अपने घर के किचन से ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि विदाउट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ पैकिंग मटेरियल खरीदना होगा. बर्तन तो जो हमारे किचन में ऑलरेडी होते हैं उन्हीं से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिंग एनी मोर मनी. बट फर्स्ट थिंग नीडेड इज द लाइसेंस. A license. Okay, and how do you get this license? You can apply it online or there are people who help you get those. Apply online exactly where? FSSAI का वेबसाइट है. Okay. So you can apply on that. Or there are agents who get you the license made. Okay. Okay. So you need a license because without license,
इट्स इलीगल टू डू द किसी ने वर्क. पकड़ लिया तो हाँ, इट्स इलीगल. बट ऐसे बहुत लोग हैं No, I- रेखा, जो कर रहे हैं आई थिंक बिना लाइसेंस के, बट वो फिर उतने बड़े स्केल पे नहीं नहीं, कर रहे इवन होंगे। छोटे स्केल पे भी कर रहे हो, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. इफ एनीवन, इफ देयर इज अ समवन कंप्लेन्स दैट सो एंड सो पर्सन इज नॉट डूइंग दिस, और आपके अच्छा। घर में रेड हो गई, तो आपको वो फाइन भरना पड़ेगा, व्हिच इज लैक्स इन कम्स इन लैक्स ऑफ रुपीस. वाओ। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ लाइसेंस. लाइसेंस फर्स्ट। ठीक है। यस. अच्छा रेखा, इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अब मिनिमम बेसिक इन्वेस्टमेंट लेट्स से अगर किसी ने भी शुरू करना है तो आप क्या होती है बेसिकली? जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट इन्वेस्ट मच. आई हैड लॉट ऑफ यूटेंसिल्स एट होम. मैंने एक कमर्शियल छोटा सा चूल्हा खरीदा था जी। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए. जी। और कुछ जैसे मैं केटरिंग से स्टार्ट मैंने किया था, तो मैंने कुछ कंटेनर्स खरीदे थे वो फूड कैरी करने के लिए. इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 15-20,000. ओके। उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को केटरिंग्स करनी थी मेजरली, इसलिए मैंने वो खरीदा. अगर सिर्फ घर से काम करना है तो आपको बेसिक 10,000 के इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं. वाह, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली क्या लिया जाए? आपको एक तो आपको पहला चीज आपका लाइसेंस आ गया. लाइसेंस कितने का आता है? लाइसेंस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो कॉस्ट यू ओनली 150 रुपीज. वाह, ओके। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करते हो तो दे चार्ज समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 रुपीज. ओके, तो ऑनलाइन हम खुद जाके कर सकते हैं, बेसिकली एजेंट के थ्रू जाने की हमें जरूरत नहीं। अगर कोई क्वेरी रेज होता है तो एजेंट के थ्रू इट्स इजी. अच्छा, ओके। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो एजेंट्स बता देते हैं, दे फॉलो इट अप एंड दे गेट इट डन. तो बेसिकली 10-20 हजार रुपए में आप हाँ अपने घर जी, से शुरू जी, कर सकते हैं। जी. तो आपने एग्जैक्टली फिर शुरू किया, उसके बाद आपको आपको ग्रोथ मिली इसमें? तो मैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स इनिशियली, तो जो मुझे बिजनेस मिला वो फूड ग्रुप्स में क्वेरीज आती थी. ओके। तो आई वाज पार्ट ऑफ लॉट ऑफ फूड ग्रुप्स, वहाँ से इंक्वायरी आती थी, तो आई यूज्ड टू गिव माय नेम एंड दे कॉन्टैक्टेड मी. फिर एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, वर्ड ऑफ माउथ. और मेरे साथ ये था कि मैंने काफी कॉर्पोरेट्स में काम किया था, तो आई न्यू पीपल इन दैट वर्ल्ड. ऑफिसेज में सप्लाई? हाँ, तो मेरा मेजरली बिफोर कोविड यही था कि मैं ऑफिसेस की केटरिंग्स करती थी. ओके। तो तब मैं मोस्टली आई शुड कॉल माई सेल्फ अ केटरर, क्योंकि मैं वो बिग स्केल का ही काम मैंने शुरू किया था, क्योंकि केटरिंग्स ही कर रही थी मेजरली. तो ये तो आप लकी थे हाँ. डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास क्लाइंटेल ऑलरेडी रेडी थी. हाँ, यानी आपके पास- बस टैप करना था और उनको ये था कि supply करना था। हाँ. जी, दैट इज ब्रिलियंट. अच्छा रेखा, किसी ने आप शुरू किया जिनके पास बेसिकली ये क्लाइंटेल अगर नहीं है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए? सोसाइटीज में अपना शुरू करें. फिर सोसाइटीज में पहले तो आपको अपने खाने की फीडबैक लेनी चाहिए. मैंने भी जब शुरू किया था उससे पहले लोगों को काफी खाना खिलाया है. पेड नहीं, मैं अपने खुद के खर्चे से बना के उनको खिलाती थी. इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या आपको क्या लगा, व्हाट इज द प्लस पॉइंट्स. हाँ, तो उसके हिसाब से आप अपनी रेसिपीज ट्वीक कर सकते हैं. आप बेसिकली साउथ इंडियन में ही डील करती हैं? नहीं, मैं साउथ इंडियन भी करती हूँ. मैं KNK करती हूँ, बोल मैं कश्मीरी और केरला करती हूँ. अच्छा, ओके. तो मैं कश्मीरी मुस्लिम फूड भी करती हूँ, नॉट द हिंदू पंडित वन. बिकॉज आपके वहाँ पे केरला में नहीं, मैंने सीखा था किस. अच्छा, सीखा था. हाँ. ब्रिलियंट. तो आपने बेसिकली अपनी नीश और बढ़ा ली, साउथ इंडियन के साथ कश्मीरी भी शुरू. हाँ जी. ठीक है. और रेखा, अगर हमारे को बेसिकली आपने कहा हम सोसाइटीज में शुरू कर सकते हैं, सोसाइटीज में आपका धीरे धीरे करके काम बढ़ने लगेगा, आपको ट्रायल्स मिलने लगेंगे. अब ये बेसिकली अगर आपको ऑनलाइन लेके जाना है, ये काम ऑनलाइन लेके अपनी मार्केटिंग करनी है और बढ़ाना है काम, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए स्विगी जोमेटो प्लेटफॉर्म है, वैसे ही होम शेफ्स के लिए भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है. जैसे शेफ पिन है, वी द शेफ है, शेफी है. अच्छा, तो होम शेफ्स के लिए प्लेटफॉर्म है. तो ये जैसे स्विगी जोमेटो काफी ज्यादा कमीशन चार्ज करता है, और उनका ड्यूरेशन आपको आधे घंटे में देना होता है, लेकिन इनके साथ आपको एडवांस ऑर्डर्स मिलता है. मिनिमम 24 आवर्स का एडवांस ऑर्डर आपको आता है. और इनका हर कंपनी का अलग अलग पेमेंट साइकिल है, लेकिन पेमेंट्स कभी अटकते नहीं है, क्लियर हो जाता है. हाँ. अगर किसी ने टाई अप नहीं करना है, तो आप ये कह सकते हैं किसी का अगर बहुत बड़े स्केल पे अभी काम नहीं चल रहा है जी, तो क्या वो अदरवाइज कोई और चैनल है जिसके थ्रू डिलीवरी करवा सकते हैं? डिलीवरी का तो आजकल बहुत सारे डिलीवरी एजेंट्स है, जैसे पोर्टर है, स्विगी जीनी है, डंजो है. तो इनके थ्रू तरह आप बेसिकली 1-on-1 ऑर्डर लेके आप कर सकते हैं. और ये जो कंपनीज ये भी आपको छोटे ऑर्डर्स भी देते हैं, बड़े ऑर्डर्स भी देते हैं. तो आपकी कैपेसिटी कितनी है आप उनको बता सकते हो, उसके हिसाब से. हाँ. और फिर तो वो आपको बिजनेस ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होता है. फिर आपको अपना फेसबुक पेज बनाना चाहिए एक, और इंस्टाग्राम पेज बना के आप जहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं. एक स्पेशल वीकेंड मेन्यू बनाएं,
पहले उसको अपनी सोसाइटी में फ्लोट करें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी बिग मेन्यू ऑन वीकेंड, छोटा सेलेक्टेड 4-5 आइटम का मेन्यू बनाएं जी जी। और उसको अपनी सोसाइटी में फ्लोट करें। फिर उसको ये सोसाइटीज में मे बी स्टॉल्स लगा सकते हैं। स्टॉल्स का काम सीजनल है और वो क्योंकि वो सिर्फ ठंड के महीने में स्टॉल्स का चलता है ज्यादातर। ओके। बाकी अगर आप देखो सोसाइटीज में जैसे गैदरिंग्स भी हो सकती हैं, होती रहती हैं, यू नो, हर एक कोई भी अगर फेस्टिविटी आती है तो आउटडोर्स में यूजुअली गैदरिंग्स होती हाँ हैं, होती है फंक्शंस होते हैं, तो जी, उसमें भी आप लगा सकते हैं। हाँ जी। उसमें यही है कि आपके स्टॉल का चार्जेस कितना है, क्योंकि अगर स्टॉल के चार्जेस बहुत एग्जॉर्बिटेंट हुए तो फिर आपको ब्रेक इवन होने में भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर बाहर जैसे हम जाते हैं, यू नो, कार्निवल्स पे जाते हैं, जी वहाँ लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं, जी कहीं हम मॉल्स में जाते हैं, वीकेंड स्टॉल्स होते हैं, हाउ जी डज दैट वर्क? सी कुछ जगह पे तो जैसे अपना एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ। मैंने ये वन होराइजन टू जो होराइजन बिल्डिंग है डीएलएफ में, वहाँ लगाया हुआ है। कुछ बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, कुछ बार मुझे लॉस हुआ है। आप इसके थोड़े से इकोनॉमिक्स में जा सकती हैं रेखा? जी, जब फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था तब स्टॉल का कॉस्ट समय अराउंड 7,000 था। ओके। तो मैंने ये दो आप कह रही हैं डीएलएफ होराइजन 1? हाँ, ओके। होराइजन 1-2 का जो बीच की गुड़गांव जगह में जो है, है हाँ ये जो। हाँ वहाँ पे है। हाँ। तो दो हफ्ते का मैंने 14,000 पे किया था। जी। तो सो 2 हफ्ते के लिए आपने 14,000 दो हफ्ते के लिए यानी लगा दो था वीकेंड resort? एक दिन का एक दिन। एक दिन का 2 दिन के चार्जेस थे वो। जी। तो उसमें मेरे को फर्स्ट जब लगाया मेरा 25,000 प्लस का सेल हुआ, ओके। तो मेरा प्रॉफिट रहा। फिर तो 7,000 आपने स्टॉल पे दिया? हाँ 7,000 मैंने स्टॉल पे दिया। 2 लड़के मैंने बाहर से हायर किए स्टॉल जी, के लिए, जी। क्योंकि या तो आपके फैमिली मेंबर को हेल्प करने को हो तो आपकी वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। हाँ, जी। नहीं तो अपने लड़के लगाने हैं, क्योंकि वो फास्टली आपको स्टॉल्स होता है तो डिमांड होते हैं, तो फास्ट Absolutely. काम करने, क्योंकि कैश काउंटर आपने संभालना है जी। और गेस्ट भी आपने एंटरटेन करना है, अपने जी। प्रमोशन भी करनी है। जी। तो वो ही कॉस्टिंग हो जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाता है वहाँ पे। तो आपने 7,000, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दिस डाउन, 7,000 का आपने स्टॉल लिया। जी, उसके बाद आपके लड़के दो प्लस लड़के आपका रॉ मटेरियल, खाना जो बनाना है आपका, जी, वो सब करके आपका कितना बैठा? मेरा अराउंड 14-15 के आसपास बैठा होगा। ओके। और आपकी सेल्स हुई 25,000 के 25? आसपास। तो बेसिकली आपने 10 बना लिए एक दिन में, हाँ, एक वीकेंड पे, एक from a वीकेंड पे। carnival। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने किया तो मैंने स्टॉल की कॉस्ट 9,500 दिया। जी, वो तो बट समय के साथ बढ़ गई। हाँ, हाँ। और फूड कॉस्ट भी अराउंड मेरा 18 था, सब कुछ मिलाकर अराउंड 18,000 का था, और मेरी सेल हुई 13,000 की ही। तो मैं 5,000 के लॉस में रही। ओह नहीं, वो तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काफी चीजों पे आपके लिए गैम्बल है। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपके ये ओवरहेड्स हट जाते हैं। हाँ, क्योंकि मौसम भी होता है, क्योंकि कभी एक्सट्रीम ठंड में भी लोग नहीं आते, जी। एक्सट्रीम गर्मी में भी नहीं आते। बिल्कुल तो यही चीज है, गैम्बल है। गैम्बल है। और रेखा, मैं एक और बात समझना चाहती हूँ, आजकल जो होम शेफ्स हैं फॉर एग्जांपल, जी, तो अगर मैंने भी जैसे कभी लोगों से खाना ऑर्डर किया तो उनकी भी प्राइसिंग देखी जाए और रेस्टोरेंट की प्राइसिंग देखी जाए तो उसमें बहुत कुछ खास फर्क नहीं है। नहीं तो है। हमारे एक अगर कंज्यूमर है तो वो आपके पास होम शेफ से क्यों जाए? वो रेस्टोरेंट में जाके आराम से डाइन आउट भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में जो सप्लाई आता है रॉ मटेरियल का, वो बल्क में आता है, जी। और जो हम लेते हैं वो रिटेल में लेते हैं, तो कॉस्ट का मेजर फर्क होता है। रेस्टोरेंट्स के पास जो होता है, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर तो जो मार्केट में प्राइस अगर प्याज 100 रुपए भी हो, उनको वो 30 रुपए में ही मिलेगा, अच्छा। क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है इतने केजी का अपने वेंडर के साथ। ओके। लेकिन हमारे लिए पास वो चीज़ नहीं होती है। जी, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने हाँ, ऑर्डर्स के हिसाब से ऑर्डर्स के लेते हैं। हिसाब से, इवन फॉर नॉन वेज, अगर आप नॉन वेज बनाते हैं तो हमारे पास घर में कितना स्टोरेज कर लेंगे, क्योंकि वी बिलीव इन गिविंग फ्रेश फूड, बेसिकली होम लाइक फूड। तो स्टोर किया हुआ फूड हम नहीं देते। रेस्टोरेंट होटल्स में आपकी ग्रेवी प्रिपेयर्ड होती है, उसी को उठाया, मिक्स किया, बना के दिया। सो बेसिकली लेकिन इट्स एन हेल्थियर ऑप्शन कंपैरेटिवली। यस, ओके ओके ओके। अच्छा, एक और चीज मैं को आपसे पूछनी थी रेखा, कि आपने जाके अपना लाइसेंस ले लिया, जी, अब अपने प्रोडक्ट नेम्स और लोगोस को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर कहिए कि आपका काम चल पड़ा जी। तो ऐसे आपको देख के आपके साथ और भी लोग होंगे जो मे भी करना चाहेंगे। तो तो आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, हाँ, ट्रेडमार्क ले सकते हैं आप उसका। मैंने अभी तक तो लिया नहीं है ट्रेडमार्क, लेकिन अच्छा। लेना चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि ये ब्रांड आप बिल्ड करते हो तो इवेंचुअली आप हाँ, ट्रेडमार्क कर आप सकते हैं। हाँ, ओके ओके, ठीक है। और आपने आप डिलीवरी और पैकेजिंग कैसे हैंडल करती हैं? डिलीवरी तो मैं थर्ड पार्टी से करवाती हूँ। ओके। मैं मोस्टली पोर्टर या स्विगी जीनी यूज़ करती हूँ, और अगर बल्क ऑर्डर्स होते हैं
जैसे 20 लोगों से ऊपर का खाना है, 10 लोगों से ऊपर का है, तो मैं स्टील कंटेनर्स में खाना भेजती हूँ। स्टील कंटेनर्स में और भी हाइजीनिक है। हाँ, तो स्टील कंटेनर्स फिर आपके पास वापस कैसे आते हैं? तो वो मैं क्लाइंट से पहले ही बात करती हूँ। जैसे हाफ प्लास्टिक्स नहीं भेजते, डिस्पोजेबल नहीं नहीं भेजते? नहीं, अगर छोटे ऑर्डर्स होते हैं मैं डिस्पोजेबल भेजती हूँ। बड़े ऑर्डर के लिए इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट कि हम इतना सारा प्लास्टिक यूज करें, एब्सोल्युटली। तो और उससे आपकी आई थिंक कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टील कंटेनर बेसिकली आपके पास वापस आ जाए। तो डिलीवरी जो है एक तरफ का मैं देती हूँ, एक तरफ का क्लाइंट से लेती हूँ। ओके ओके, फेयर इनफ। हाँ जी, ओके, ठीक है। और इसमें और मैं वो कैब से भेजती हूँ, अगर बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो कैब से जाते हैं। तो आपकी बेसिकली आपकी जो कॉस्टिंग है, आपके पास कोई ऑर्डर आया प्लस आप डिलीवरी चार्जेस भी जी उसमें लगा देते जी, जैसे मैं गुड़गांव बेस्ड हूँ, मुझे अगर नोएडा भेजना है या फरीदाबाद जाता है मेरा खाना, तो वो डिलीवरी कॉस्ट ऑब्वियसली विद इन गुड़गांव से ज़्यादा लगेगा। जी। तो फिर एक तरफ का मैं दे देती हूँ, वापस एक तरफ का क्लाइंट से लेती हूँ। ओके। और एक आप मंथली बेसिस पे जस्ट टू एनकरेज फीमेल्स आउट देयर, आप एक महीने में आप कितना कमा लेती हैं? डिपेंड करता है। हाँ, कहीं देखिए, कहीं मंथ स्लो होते हैं, कई बहुत अच्छे जाते हैं, जी। बट ऑन एन एवरेज आप कैसे करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप कौन से कॉन्डो में रहते हो। कुछ लोग हैं जो जिनके कॉन्डोज में इतना ऑर्डर्स होता है, उन्हें बाहर की जरूरत ही नहीं होती है। जी जी, तो absolutely। फिर भी जस्ट टू गिव इट हैव अ रफ आइडिया थोड़ा सा। तो जैसे मैं थर्ड पार्टी के साथ काम करती हूँ, फॉर एग्जांपल वीदर शेफ के साथ काम करती हूँ, काफी काम करती आप हूँ। एग्जैक्टली आप अपना अमाउंट मत बताइए, बट जस्ट फॉर पीपल टू हैव एन आइडिया। आप आराम से 1-1.25 लाख का बिजनेस कर सकते हो। 1-1.25 लाख का कर सकते हैं? कर सकते हो हाँ, आराम तो से। 1-1.25 लाख का बेसिकली अगर आप एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं, आप उतना भी कमा रहे हैं, यहाँ पे आप घर पे रह के हाँ, उसमें अपना आपका 50% करीब आपका प्रॉफिट बन जाएगा। 50%। तो बेसिकली अगर आपने एक कमाया तो नेट आपका 50 बन जाता है। 50 बन जाता है, ओके। और आपके अंडर रेखा, आप सब कुछ खुद ही मैनेज करती हैं घर पे? आपने कोई शेफ या नहीं, मैं एडहॉक रखती हूँ, मैंने फुल टाइमर्स नहीं रखे हुए हैं। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई हायर बॉयज एज पर देयर एक्सपर्टीज। जैसे मैं काफी केटरिंग्स करती हूँ, तो मुझे स्टॉल्स के लड़के चाहिए होते हैं, बारबेक्यू करना है, डोसे का काउंटर लगाना है, तो मुझे लड़कों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप बाहर स्टॉल्स के लिए करें, अगर घर से आपको मैनेज करना है जितना हो सकता है वो आप नहीं, घर पे भी कटिंग चॉपिंग, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है तो आप इतने नहीं कर पाओगे अकेले। बड़े बर्तन होते हैं, उन्हें उठाने तक में दिक्कत होती है, तो आपको कोई ना कोई हेल्प तो जरूरत पड़ती है अगर आप ऑर्डर्स बड़े करते हैं तो। छोटे ऑर्डर्स के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर्स बड़े हैं तो आपको हेल्प चाहिए। और आप इसमें अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स या अपना बेसिकली आप रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ कैसे मैनेज करते हैं? एक तो आई एम ओपन टू फीडबैक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज पसंद आए, तो यू शुड बी ओपन टू फीडबैक। तो किसी को अगर खाना फॉर एग्जांपल नहीं आया, अब रेस्टोरेंट में जैसे हमारे पास खाना आया, हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रेस्टोरेंट में वापस फोन कर देते हैं। वो बोलते हैं हम आपको रिपीट कर देते हैं या ठीक से बना के भेजते हैं। यूजुअली हमारे साथ रेस्टोरेंट में यही होता है। तो ये होम शेफ्स कैसे डील करते हैं इसके साथ? उनको जैसे कुछ किसी को लगा मेजर प्रॉब्लम, जनरली होता नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर लेने से पहले ही कस्टमर से पूछ लेते हैं कि उनको स्पाइस लेवल कैसा चाहिए, तो जनरली होता नहीं। अगर कभी गलती से हो भी गया तो फिर हम उन्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भेज देते हैं या कुछ और भेज दे, और नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आता है तो उसमें कवर अप कर लेते हैं। जी जी जी, ठीक है। और आपका अभी तक रेखा सबसे स्ट्रेसफुल क्लाइंट या एक्सपीरियंस क्या रहा है? स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो आपको याद हो मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही किसी के घर पे केटरिंग सामान दे के आई थी। बिरयानी था, वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी। बोल के आई थी कि डब्बा खोल के रखना, क्योंकि कैसरोल्स था। उन्होंने बंद करके रख दिया उसको। तो गरम बिरयानी को बंद करके अगर घंटों रखोगे तो वो खराब हो ही जाएगा। तो 12-12:30 मुझे क्लाइंट का रात के फोन आता है कि हमारी बिरयानी दोनों खराब हो गई है। तो गलती क्लाइंट की थी, लेकिन एज वी से कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो मुझे उन्हें नई बिरयानी कहीं और से रात को प्रोक्योर करके, आउटसोर्स करके प्रोक्योर करके देना पड़ा। इट वाज अ कंप्लीट लॉस फॉर मी, बट एंड ऑफ द डे वी आर सर्विंग कस्टमर एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट। दैट्स ट्रू। हॉस्पिटैलिटी में, फूड बिजनेस में ये तो आपको देखना ही पड़ता है। और आप बाहर जो औरतें हैं रेखा, देखिए उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी हैं जो कहीं ना कहीं अपना काम घर से शुरू करना चाहती हैं। किसी को अगर अपना होम बिजनेस शुरू करना है, आपकी क्या एडवाइस है हमें? फॉलो योर ड्रीम्स। फॉलो योर ड्रीम्स। आज आप देखोगे मैं होटल में जो काफी एम्प्लॉयज है, शेफ्स है, उनको भी ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, वाओ। मेजर होटल्स चेन्स के साथ मैं काम करती हूँ,
चाहे वो मैरियट आपको हो। कितने साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने में रेखा? तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को काम शुरू किए 7-8 महीने के अंदर ही रेडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। ब्रिलियंट। तो आप वहाँ के शेफ्स को ट्रेन कर रही हैं? नहीं, मैंने वहाँ कुकिंग किया था। अच्छा, वहाँ कुकिंग। मैंने वहाँ पे कुकिंग किया था, उनके लिए एक इवेंट किया था, एंड ऑनेस्टली मैंने पैसे के लिए नहीं किया था। आई वाज नॉट पेड अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ओके, सो बेसिकली वहाँ पे उनके पास कोई इवेंट आया और आपने उनके लिए कुकिंग हाँ की वहाँ जी, पर? मैंने उनके लिए कुकिंग किया। डिड अ केरला सद्या फॉर देम। ओनम फेस्टिवल का टाइम था, अच्छा, तो मैंने तो उनको ऐसे टाई अप्स आप कर सकते हैं बेसिकली होटल्स के साथ? हाँ, तो मैं होटल आज आज तो उनके साथ पहला अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, जी। तो मैंने उनका रेस्टोरेंट फुल कवर करके, आई सोल्ड ऑल द इवेंट भी, मैंने सेल करके भी दिया था उनको पूरा। वाह, तो सो ऐसे एक आप अपॉर्चुनिटी मिलना एक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटी हाँ, मिली और अब उसके बाद आपके टाई अब अप्स। मैं पैसे मांग सकती हूँ क्योंकि आई कैन डिमांड दैट। इनिशियली मैंने पैसे, बेसिकली यू गिव वैल्यू, हाँ, उसके बाद देन द रिटर्न केम इन। यस। नो, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने वहाँ पे 4 होम शेफ्स का इवेंट करवाया है अच्छा, तो वो एवरी क्या करें वीकेंड। एग्जैक्टली? 4 होम शेफ्स, जैसे लास्ट मंथ मैंने स्टार्ट किया एक फेस्टिवल। होम शेफ्स हैव बिकम like a big यस, thing now, isn't it? सो स्टार्टेड विद एन अवधी फूड फेस्टिवल। जी। 3 डेज का अवधी फूड फेस्टिवल कराया। एक लेडी है, शी इज बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव ओनली। Okay. फिर सेकंड मैंने अपनी, मेरी कॉम्पिटिटर है, वो भी साउथ इंडियन बनाती है, सेम नेम से एज मी, शी इज आल्सो रेखा, वाह। तो उन्होंने साउथ इंडियन किया। जी। फिर फॉलोड बाय बंगाली। जी। We concluded the festival with Kashmiri food by another, she does Kashmiri, Same day, 3 days, 4 weekends. 4 weekends. So one cuisine per weekend. Yes. तो Okay. रेडिसन में करवाया, तो होम शेफ्स को भी मैंने अच्छी पेमेंट दिलवाई है उनसे, होटल से। Okay. Okay. तो उनकी पेमेंट स्केल क्या होता है यूजुअली अगर आपको ऐसे वो मिल जाते हैं टाइम? तो होटल के साथ हमारा पहले डिस्कशन होता है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनके साथ कि कौन से शेफ को आप कितना दे रहे हो। एवरीथिंग इज रिटन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके ओके। कॉन्ट्रैक्ट तो इज मेड। इवेंचुअली बेसिकली आपने लेट्स से 6 महीने तक आपने अपना थोड़ा सा पब्लिश कर लिया या 1 साल इसमें लगाया, तो आप होटल्स को कब अप्रोच कर सकते हैं जब आपकी क्लाइंटेल थोड़ी रेडी है? हाँ, आपको क्लाइंटल तो देना पड़ता है उनको, क्योंकि होटल भी कहता है कि आपके लिए हम फेस्टिवल कर रहे हैं, क्योंकि पूरा खर्चा होटल कर रहा है, जी तो आपको अपने कस्टमर्स तो लाने पड़ेंगे। जी जी। तो बेसिकली क्लाइंटेल आपकी आ रही है, क्लाइंटल आपकी भी आएगी, होटल प्लस की भी आएगी। पब्लिसाइज तो करेंगे। जी। हाँ, जी जी। ओके, ब्रिलियंट। बट ये है आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको न्यूज़पेपर कवरेज मिलता है। जो मेरा लास्ट इवेंट था उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सबने कवर किया उसको, तो आपको पब्लिसिटी भी मिलती आपका है। काम भी बढ़ता है। जी। हाँ, होटल चेन से तो बिल्कुल होता जी। है। रेखा, और कुछ है ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? एग्जैक्टली कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जो जिससे किसी की हेल्प हो सके? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ग्रो करना है, आप सिर्फ पैसे देख के ना करें, जी और कॉस्टिंग ऐसा ना रखे कि सामने वाला वो बहुत ज़्यादा हो, ना आपको अंडर सेल करे ना ओवर सेल करे। जी जी। जैसे आपका नाम बढ़ता है तब आप अपनी धीरे से प्राइसिंग हाँ, बेसिकली बढ़ा तो सकते मार्केट की इक्विवेलेंट रखिए, ना अंडर सेल करिए अपने आप को, ना आप बहुत ज़्यादा। हाँ नो योर वैल्यू एंड ओवर सेल हाँ। करें। ठीक है, बहुत मजा आया रेखा, थैंक यू। दिस आई एम श्योर इससे किसी ना किसी को मदद मिलेगी हमारे इस एपिसोड से। अगर आपको ये एपिसोड लगता है किसी की हेल्प कर सकता है तो इसे शेयर करें। थैंक यू।